بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی ونورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی وانصرنی وانظرنی وارحمنی وحفظنی وارشدنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف اعلان نبوت کے بعد تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے میکے کی مقدس خاندان بنو نجار کی شہزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کرتی ہیں تو ان کی زبان پر نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصروں کا غلبہ تھا۔ وہ نعتیں وہ بچیاں پڑھ رہی تھیں کہ جس کو سن کر کے مقربان بارگاہ الہ ہی نہیں جھوم رہے تھے، جس کو سن کر کے مدینہ شریف کی زمین ہی نہیں رقص کر رہی تھی، جس نعت کو سن کر کے مدینہ پاک کا کلائمیٹ ہی نہیں جھوم رہا تھا، جس پاکیزہ نعت کو سن کر کے صرف صدیق اکبر ہی نہیں جھوم رہے تھے بلکہ خود حضور بھی مسکرا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جھوم رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں بہت کی برکت کے ساتھ اپنے ان محسنین کے قدم کی برکتوں سے تبرکن اس نعت کو پڑھتا ہوں جو نعت حضور کے مدینہ شریف میں انٹری کے وقت ویلکم کے موقع پر پڑھی گئی ہے، استقبال کے موقع پر پڑھی گئی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع سبحان اللہ، وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نعت کی برکتوں سے اللہ اس محفل کو ہونے سے پہلے قبول فرما لے، آمین۔ سب لوگ آمین کہیں، آمین۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد نعت کہنے کا سلسلہ چل نکلا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کو دیکھ کے حضور کی نعتیں لکھتے، حسان بن ثابت انصاری حضور کو دیکھ کے حضور کی نعتیں لکھتے۔ وہ سلسلہ جب اعلیٰ حضرت سرکار تک پہنچا، درمیان میں شیخ سعدی شیرازی گزرے ہیں جنہوں نے ایران میں رہ کر کے فارسی تہذیب و ثقافت کی کوکھ سے نکل کر عربی زبان میں نعت کہنے کی کوشش کی تھی۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو بچے ادھر شور کر رہے تھے ان کو خاموش کر دیں۔ اے مولوی صاحب بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شور نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ بڑی محبت کے ساتھ سنیں، میں اپنے بھائیوں کے سائے میں ہوں، اجازت دیں۔ شیخ سعدی شیرازی ہیں جو ایران کی زمین پر عربی زبان میں نعت لکھنے لگے۔ وہاں کی زبان فارسی ہے، وہاں کا کلچر فارسی ہے، لیکن عربی زبان میں شیخ سعدی شیرازی حضور کی نعت لکھنے لگے۔ پہلی نعت کی عربی زبان کی جو کرن تھی، جو مصرع تھا، ٹکڑا تھا، اسے لکھا بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ۔ رب کا فضل ہوا تو دوسرا مصرع لکھا کشف الدجا بجمالہ، سبحان اللہ۔ پھر فضل ہوا تو پھر لکھتے ہیں تیسرا مصرع حسنت جمیع خصالہ، واہ۔ پھر دنیا میں آپ کی آواز سنی جائے گی۔ فیضان سرکار اختر رضا خان یوٹیوب چینل پر لائیو یہ ریکارڈنگ آواز کی صورت میں پہنچ تمام تر عاشقان حضور صلی اللہ علیہ وسلم و عاشقان سرکار غریب نواز و غوث اعظم
व ख्वाजा पाक व बिलखुसूस सरकार इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी से सुभान लेकर अल्लाह। मेरे आका, मेरे शेख, मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया तक और हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत तक बहुत सुभान बहुत अल्लाह। मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में इस वक्त सरकार हुजूर ताजुश शरिया के नाम की इस मुकद्दस शाहराह के मुसाफिर बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। शेख सादी ईरान में हुजूर की नात लिखते हैं, सुने आप। मैं भाई मैं तकरीबन 9 दिन के बाद कल घर वापस गया था, माशाअल्लाह। 8-9 दिन के बाद रात के 2-2:30 बजे मैं अपने बेड पे सोने के लिए गया। फजर की नमाज 2-2.5 घंटे के बाद थी। मैंने अलार्म लगा दिया और नमाज पढ़कर 150 किलोमीटर का सफर किया लखनऊ का। तब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां से तकरीबन 1900 किलोमीटर का सफर किया बाई एयर, तो फिर बेंगलोर आया, वहां से तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर किया जी। तो इन उलमा के और आपके कदमों के नीचे आया। भाई जिंदा हूं यही बहुत बड़ी बात है, निजामत वगैरह तो नहीं हो सकती है। समझे भाई, सीधी सी बात है। इतना थका पिटा आदमी जब घर जाएगा तो निकल नहीं सकता है, लेकिन वाह मेरे आका हुजूर गुलजार मिल्लत के नानेन की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस जलसे का नाम फिक्र रजा रखा, इज्जत सादात किराम रखा, तो जाहिर सी बात है मुर्दे भी अपनी कब्रों से आ सकते हैं। मैं तो जिंदा अपने घर में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और आप वक्त से पहले आ गए, इसलिए मेरी थकावट दूर हो सकती है। मेरी निजामत जो होती है ना, बहुत स्लो पॉइजन की होती है। जी। बहुत ही छोटी छोटी सांस और मखमली फिजा, तैरती हुई फिजा में हुजूर की बातें करने का मैं आदी हूँ। आप हंगामा ना करें, जो बच्चे कहीं शोर करें उन बच्चों को खामोश कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा परेशान करें इनको लगेज समझ करके कहीं आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। आप लेकिन हुजूर के जिक्र में कहीं से दीवारें दरार ना पैदा करें, ठीक है, तब तो बात बनेगी। वरना बहुत बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, कहीं भी बैठ के हुजूर की बातें हो सकती हैं। आप नहीं सुनोगे तो क्या हुआ, हम किसी समंदर के किनारे बैठ के हुजूर की बातें करेंगे, समंदर की मछलियां सुभान अल्लाह करेंगी। सुभान अल्लाह। समंदर दूर होगा तो किसी हरे पेड़ के नीचे बैठ के हुजूर की बातें करेंगे, कोई नहीं सुभान अल्लाह कहेगा, हरे पेड़ की पत्तियां सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह। किसी के घर के दरवाजे के बाहर बैठ के हुजूर की बातें करेंगे, उसके घर की दरो दीवार सुभान अल्लाह कहेंगे। समझे मेरी बात को। हम कोई नहीं होगा तो आसमान के नीचे बैठ के फरिश्तों को बुला के सुभान अल्लाह कहलवा लेंगे। कोई नहीं सुनेगा तो अकेले बैठ के हुजूर की नात पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह कौन कहेगा, मेरे काने पर बैठने वाले फरिश्ते सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह, अपनी सुभान अपनी अल्लाह। जरूरत है, अपना अपना मिजाज है। आपको हुजूर के जिक्र की जरूरत है, हुजूर को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी और उम्मत का फर्ज बनता है कि उस एहसान का बदला तो चुका नहीं सकती उम्मत, लेकिन गुलामी का हक तो अदा कर सकती है। सुभान अल्लाह। और हुजूर क्या आपसे मांगते हैं, अपनी जमीन हुजूर के नाम लिखते, सब हुजूर का है। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहे। वाह वाह। क्या देंगे आप हुजूर के नाम पर। ये आंखें भी तो हुजूर ने दिलवाई हैं, ये जबान भी तो हुजूर ने दिलवाई है, ये जिस्म इतना बड़ा पार्ट तो हुजूर के सदके में मिला है। अल्लाह सब कुछ हुजूर का है, सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर के नाम पर इस हाथ तो कटवाने की जरूरत नहीं है, आंख निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल की आवाज को वक्त की पाकीज़ा जमील में रख करके हुजूर के जाकिरीन के कदमों के नीचे पेश कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। इतना करना है कि अपने वक्त की कुर्बानी दे दो। आज हुजूर का करम हो गया तो इंशाल्लाह बैठे बैठे मदीने पाक की हाजिरी हो सकती है। ये हवेली की जमीन है, ये कहाँ कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये तमाम तरह हिंदुस्तान का ये साइड का बेल्ट है, और यहाँ पर भी हुजूर के आशिक इतनी मोहब्बत से आज बैठे हुए हैं। खुदा कसम मेरे बस में नहीं, वरना पूरी दुनिया को दिखाता कि इस जजीरे पर हुजूर के कैसे कैसे आशिक बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस एक गुजारिश है, ये जो बिखरे हुए बैठे हुए हैं ना, तो ये तरतीब थोड़ी सी अच्छी नहीं है। जितने लोग पीछे बैठे हुए उठे वहां से, गौस पाक के नाम से सब लोग, बड़े पीर के नाम से सब लोग आगे आए। सुभान अल्लाह। मेरे नाम से नहीं, जो गौस पाक सरकार से मोहब्बत करता है वो तरह से बहुत बहुत सुभान अल्लाह कहते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। माशाल्लाह भाई आप वहां से उठे, कारी साहब उठे, वहां से उठे, आ जाइए। माशाल्लाह आइए, सुभान अल्लाह, गौस पाक का वास्ता, आप लोग अंदर आइए। माशाल्लाह देखो कोई पीछे बैठा तो नहीं है, बुलाइए। बड़े भाई उठिए, वहां से उठिए। आप मेरे सर का ताज हैं, आप बैठे, आगे आए, आगे आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशा जो चचा कोई दिक्कत ना हो तो आगे आ जाए, कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे बहुत अदब से गुजारिश करता हूं, आपको हुजूर गौस पाक की अजमत का। इधर बैठे हुए कश्ती में बैठे हुए क्या मतलब है, और आगे आए भाई, और आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको, मैं तो यही दुआ करूंगा जितने लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको जिंदगी में एक मरतबा गौस पाक का दरबार दिखा दे। आमीन आमीन। दिल से आमीन कहो, दिल से आमीन कहो। माशाल्लाह आमीन। सुभान अल्लाह।
अब भाई कोई पीछे ना बैठे भाई, ठीक है, जो बात करे, जो बच्चे खेले, उन बच्चों को आप खामोश कर दें। देखिए ये हुजूर का जिक्र है कितनी मोहब्बत के साथ में, और जो लोग सड़कों पे टहल रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे डर इस बात का है कहीं ये तमाम तर लोग जन्नत में न चले जाएं और तुम बाहर ही टहलते रह जाओ। हाँ, ये बड़ी पाकीज़ा फिजा है, यहाँ हुजूर गौस पाक के लाडलों की आमद है। आप वक्त देख रहे हैं कि अभी तो मामला बना नहीं है, या तुम्हारे आने से मामला बनता है। हो सकता है कि तुम्हारे आने से 2-4 लोग और आके बैठ जाएं और हुजूर के जिक्र की पाकीज़ा इनकारी जाहिर हो जाए, यहाँ की मेंटेनेंस जाहिर हो जाए, चमक जाहिर हो जाए, तो हुजूर महफिल को सजाने का भी सवाब मिलेगा, प्लस जिनको लेके आएंगे उनको बुलाने का भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये बात कर रहा था शेख सादी शिराजी की, सुने आप, ईरान में रहते थे, फारसी जबान में शेर कहते थे, अचानक नात अरबी में लिखी, पहला टुकड़ा लिखा बलगल उला बिकमालिही, दूसरा लिखा कशफत दुजा बिजमालिही, फिर लिखा तीसरा हसनत जमी व खिसालिही, चौथा नहीं हो पाया, बड़ी कोशिश की, हो नहीं पाया, तकिए के नीचे कागज और कलम को रखा, रोते रोते सो गए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या, जोर से बोले आप लब्बैक या रसूल। क्या आप ये दुआ नहीं करते रजा एकेडमी से 100-150 रुपए का स्टिकर खरीद करके अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को देते हो? अम्मी मैं इसे जलसे चलाया हूँ, इस पे लिखा हुआ है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप क्या ये कहते नहीं है? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में। आप मुझे बताओ, क्या आप हुजूर के चेहरे मुबारक को देखना नहीं चाहते हैं? कौन ऐसा गरीब आशिक है जो हुजूर को नहीं देखना चाहता? हाँ, अगर नहीं देखा तो क्या हुआ, जिसने देखा है उसी के नाम पर मचल जाइए। सुभान अल्लाह। उससे बोल दे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में या रसूल अल्लाह। इसे याद करें। शेख सादी कहते हैं कागज को तकिए के नीचे कलम को रखा और सो गए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते सादी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। यार जरा सोचो, ईरान कहाँ है और मदीने वाली आका कहाँ है? हुजूर के जाहिरी इंतकाल के तकरीबन 700-800 साल के बाद का वाकया है। मेरी बात समझ रहे हैं? शेख सादी कहाँ है? ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहां से 900 किलोमीटर के फासले पर मशहद है, जहां पर इमाम अली रजा लेटे हुए हैं। वहां से तकरीबन 200-250 किलोमीटर के फासले पर शिराज है, जहां शेख सादी शिराजी आराम कर रहे हैं। मैं ईरान 2 मरतबे गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े फकीरों की, दरवेशों की, कलंदरों की जमीन है। ईरान बड़ा मुबारक मुल्क है। इसी ईरान में एक शहर का नाम है बुस्ताम, जहां सरकार बायजीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। इसी ईरान में एक शहर का नाम है खिरकान, जहां शेख अबुल हसन खिरकानी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। इसी ईरान में एक शहर का नाम है संजर, जहां सरकार गरीब नवाज पैदा हुए। इसी ईरान में एक शहर का नाम है इस्फहान, जहां मुंबई शहर के वजीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी पैदा हुए। इसी ईरान में एक शहर का नाम है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुए। खुश हो जाओ, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसी ईरान में एक शहर का नाम है जीलान, जहां हुजूर सरकार गौसे आजम पैदा हुए। सुभान अल्लाह। शेख सादी शिराज इसी ईरान में। सुभान अल्लाह। इसी ईरान में एक शहर का नाम है जाम, जहां वो बुजुर्ग मुल्ला अहमद, जहां बुजुर्ग शेख अहमद जाम रहा करते थे, जो शेर पर सवारी करते थे। इन्हीं के शेर को गौसे आजम के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। उसी कुत्ते के बारे में गौस पाक फरमाते हैं, क्या मेरे इमाम कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ठीक है, वाह वाह। दुआ करो अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। आमीन नहीं कहो, क्या मतलब है? जाना नहीं चाहते? हाँ, मोहब्बत से कहें। हुजूर पतम कहते हैं कि मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, शेख सादी कहते हैं, और हुजूर ने फरमाया यार खुश हो जाओ हवेली वालों, जब हुजूर को सादी की नात की खबर हो गई तो तुम्हारी आवाज की खबर नहीं होगी। हुजूर फरमाते सादी जो नात तूने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो शेख सादी ख्वाब में हुजूर को हुजूर की नात सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं हुजूर वो ना सुन ले, लेकिन 3 मिसरे हुए हैं। फरमाते जितने हुए उतने ही सुनाओ। तो शेख सादी कहते हैं कि बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही। ठहर गए,
कहते बस हुजूर कुल 3 टुकड़े हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं सादी फिर से पढ़ो। शेख सादी फिर से पढ़ते हैं, बलगन उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही। मेरे आका फरमाते आगे लिख दो सल्लू अलैहि वालिही। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या सुभान कहते हैं? अल्लाह। सल्लू अलैहि वालिही। आप भी सुभान बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लू अलैहि है, वालिही। बोलो बोलो सल्लू अलैहि है, हाथों को उठा के सल्लू अलैहि है। आप अब तक जिस जलसे में गए थे आपने शोरा की नातें पढ़ी हैं, सुनी हैं। आज आपने वो नात का टुकड़ा पढ़ा जो जिसे खुद हुजूर ने कहा है, सल्लू अलैहि है। सल्लु अलैहि। जोर से बोलो सल्लू अलैहि है वाली। अल्लाह ताला आप सबके दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। इजाजत दे तो मैं आपको सलाम कर लूं। मुझे याद है सब, मैंने अभी सलाम नहीं। तो एक हदीस शरीफ बता दूं आपको, एक हदीस शरीफ के वसीले से माशाअल्लाह। बस इतनी सी गुजारिश है कि बिखर के ना बैठिएगा, मुझे बार बार ये ना कहना पड़े। मैं रोज तो आता नहीं भाई, जिंदगी में आया हूं। मैंने असलम भाई से हाथ पांव जोड़े थे, मैंने कहा मुझे ना बुलाओ, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, बहुत थका आदमी हूं और मेरे बस का नहीं इतना लंबा सफर करना। इतना लंबा सफर मैं अगर करना चाहता हूं तो सिर्फ बगदाद शरीफ करना चाहता हूं, वरना इतने लंबा सफर के लिए मैं कहीं जल्दी जाता नहीं। मसरूफियत बहुत रहती है, मैं कहाँ यहाँ आऊँगा बार बार। दुआ करो मेरी आपकी मुलाकात हो गई, इसके बाद अब आखिरत में हो इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन एक गुजारिश है, आप तरतीब से बैठिएगा। ये जो है वहाँ बैठे हुए ना, ये मेरे बुलाने से आपको यहाँ नहीं आना है। मैं कुत्तों से बदतर इंसान हूँ, मेरी औकात क्या है मैं आपसे कहूँ आप आगे आ जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसने हिंदुस्तान के वजीर आजम को कुरान छोड़ने की तौफीक अता नहीं फरमाई, उसने कुरान पढ़ने की तौफीक हम जैसे को अता फरमाई है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर की महफिल को सजाएं। हुजूर ने आपके लिए बहुत आंसू बहाए हैं। हुजूर की माँ कहती है अम्मी आमिना कि मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पेट से जमीन पर आया तो अपनी उम्मत को याद कर रहा था। जब हुजूर मेराज में गए खुदा की बारगाह में तो अपनी उम्मत को याद कर रहे थे। 2-2.5 साल पहले मदीने शरीफ में उस पहाड़ पर रात में 2 दिन लगातार गया था, रात में 2 बजे रात में, जहां जिब्रील के कहने पर हुजूर 3 दिन तक इतना रोर की भेड़ें बकरियां खाना बंद कर चुकी थी। हुजूर के आंसुओं की आवाज से पत्थर घिस गए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? हुजूर के आंसू जमीन पर गिरते थे। सिर्फ इतना कह दिया था जिब्रील ने, हुजूर मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। हुजूर इतना रोए हैं। ताइफ की गलियों में हुजूर पत्थर खाए हमारे लिए। हुजूर के घर आए और हम हुजूर की महफिल में उधर गुटखा खाए हुए हैं, उधर खैनी खाए हुए हैं, उधर बीड़ी पी रहे हैं, उधर सिगरेट पी रहे हैं, उधर चाय पी रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? सरकार के चचा अब्बास कहते हैं, मेरे बेटे बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये कहते हैं कि मैं हुजूर को कब्र शरीफ में मैंने उतारा था ना, तो मौला कायनात से, मौला अली से पूछा था कि अगर कहे तो मैं आखिरी मतबे कफन हटा के हो। उसने कहा कि मैंने हुजूर से जाके कहा था सरकार मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरी बीवी कपड़े फटे हुए हैं, उनके दुपट्टे फटे हुए, सरकार कुछ दुआ फरमा दें, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। तो हुजूर ने मुझे 3 काम सौंपे थे। कितने? जोर से बोले, सब लोग बोले। हुजूर ने मुझे 3 काम सौंपे थे, 3 अमल बताया था, 3 नुस्खे बताए थे। कहते हैं जब से मैंने उन नुस्खों पर, उन कामों पर अमल करना शुरू कर दिया, मेरे घर से गरीबी बाहर चली गई, अमीरी अंदर आ गई। सुभान अल्लाह सुभान। हाथों को उठा के बताओ कि मैं बता दूं तो अमल हो गया इंशाअल्लाह। बताओ बताओ बताओ। एक बात सुनने में, तकरीबन लॉकडाउन में 4-5 महीना पहले मैंने हदीस शरीफ सुनी थी हजरत, 4-5 महीना पहले मैंने हदीस शरीफ सुनी थी और तब से आज तक मेरा अब तक नागा नहीं हुआ। अरे साहब आप तो मेरे कबील के हैं, मेरी अपनी आदत है, मैं किसी के घर में भी जाता हूं उस हदीस शरीफ पर अमल जरूर करता हूं। आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। 12 से 13 सेकंड लगेगा। सरकार ताजुश शरिया के नाम का ये मुबारक चैनल है यूट्यूब, जो पूरी दुनिया में आपकी आवाज पहुंचा रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप नहीं रहोगे तो कहीं कोई ऐसा ना हो कि आपसे पहले अमल करने की रवायत कायम कर ले और आपसे पहले उचक ले जाए ये नेमत को। इसके हकदार सबसे पहले आप हैं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोले आप। इंशाअल्लाह। कहते हैं जब से मैंने हुजूर की 3 बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, मेरे घर से मुफलिसी बाहर चली गई, दौलत मेरे घर के अंदर आ गई। तो हुजूर के गुलाम कहते हैं यार बताओ वो 3 चीजें क्या हैं? तो कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं 3 काम करना जब घर जाना। तो मैंने कहा हुजूर क्या? तो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया था सबसे पहले घर में जाके दरवाजे से एंट्री करना तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सलाम करने का हुक्म दिया। आप तो शर्माते ना, बच्ची है, बीवी है, उससे भी शर्माते हैं सलाम करने में। ना 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 ना, हुजूर की सुन्नत है। क्यों? हुजूर फरमाते हैं, किसी ने कहा कि हुजूर अगर घर में कोई ना हो तब, मेरे आका फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उससे घर में मैं रहता हूँ। यार घर तुम कहते हो मेरा है, कभी हुजूर कह दे मेरा है तो बात बन जाएगी। यहाँ के लोग कहते हैं ये बिल्डिंग मेरी है। अरे क्या मेरी है? तो अपनी कब्र में लेके क्यों नहीं गया भाई? तेरी तो छोड़ के क्यों गया है? हाँ, और अगर हुजूर कह दें ये मेरी है तो सुभान अल्लाह बात बन जाए, है कि नहीं? कहते हैं हुजूर सबसे पहले घर वालों को बोले 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 बोले। अच्छा, आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या मतलब? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इसकी मीनिंग क्या होती है? अल्लाह तुम्हें, बोले बोले। जवाब में आप कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, क्या मतलब? अल्लाह तुम्हें भी सलाम रखे। आप घर में दाखिल हुए, आपने कहा अपनी माँ से अस्सलामु अलैकुम, माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे। बेटी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखे। बहन ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। सब मिल करके 50 साल तक दुआ करते रहे। हो सकता है दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर ये आदत बनी रही अस्सलामु अलैकुम कहने की, तो अगर कभी हुजूर ने एक मर्तबे कह दिया वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो पूरी दुनिया मिलकर तेरा नुकसान नहीं कर सकती। बेशक बेशक। सलाम की आदत डालने में खाली साहब को नहीं, आपका अपना जाती फायदा है। खुद सलामत रहना चाहते हो तो सलाम के आदी बन जाओ। बेशक बेशक। कारोबार सलामत रखना चाहते हो तो सलाम के आदी बन जाओ, ठीक है? नस्लों को आप तबाही और बर्बादी से बचाना चाहते हो तो सलाम की आदी बन जाओ। तो सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये उन 3 बातों में पहली बात थी। वो कहते हैं जब से हुजूर ने कहा मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। दूसरी बता दो, कोई मुश्किल काम तो नहीं है? बताएं बताएं भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है? हुजूर फरमाते हैं जब घर वालों को सलाम करना तो उसके बाद मुझे भी सलाम कर लेना। बहुत खूब। मोहब्बत से कह दें कितने हुए करना। तीसरा हुजूर फरमाते हैं कि एक मर्तबे कुल वल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं कहूं हाथ उठा के बताएं कि किसको कुल वल्लाहु अहद शरीफ याद नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि 2 इंशाअल्लाह कल से नहीं, उधार खाता वाला काम नहीं है, आज शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। ठीक है, आज जो बातें होंगी उसे भूल जाए, लेकिन इसे याद रख लें ताकि घर के दरो दीवार कहें कि रात में कहीं किसी पाकीज़ा मजलिस में गया था। माँ कहे मेरा बेटा किसी जलसे से गया तो कुछ सीख के लाया है। क्या कैसे करेंगे आप? सबसे पहले एंट्री करेंगे, कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर कहेंगे आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फिर कहिएगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस करेंगे इंशाअल्लाह। इन 3 कामों पर अमल करेंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो मैं सलाम करता हूँ, इसकी पहल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब आइए हम और आप मिल करके हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ें। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सबको याद है? सबको याद है? अगर मैं कहूं कि दरूद शरीफ सबको याद है तो हाथ उठा दिया करना। सूफिया कहते हैं अगर दरूद याद है तो हुजूर का नाम तो याद है, बेशक, मदीने वाले का नाम तो याद है। समझे मेरी बात को? और हुजूर पर दरूद पढ़ा करो। आपके पढ़ने की खबर हुजूर को है, जो पढ़ने की तैयारी कर रहा है इसकी भी खबर हुजूर को है, जो पढ़ने की पोजीशन में है इसकी भी खबर हुजूर को है। और जो कहता है कि हुजूर को इसकी खबर नहीं है, हुजूर ये नहीं जानते, खबर हुजूर को है। मेरी बात समझिए ना, उसके इस ना जानने की भी खबर हुजूर को है। दरूद पढ़ा कीजिए, तकिए पे कभी 4 आंसू बहा के हुजूर करो, 2-2 घंटे मोबाइल के हुजूर को याद करके सोया करो। ये जो महीना चल रहा है ना, गौसे आजम सरकार फरमाते हैं ये दरूद का महीना है, दरूद का महीना। अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे दरूद शरीफ इंशाअल्लाह, बोले पढ़ेंगे। देखिए फायदा कितना होता है। इमाम राजी ने एक वाक़या बयान कर दूं, उसके बाद इशरना शरीफ हो जाएगी, ठीक है? इमाम राजी एक बात फरमाते हैं, मैं बड़ी सीलो बात बहुत खामोशी से बात करता हूं निजामत में, अल्लाह का शुक्र है। छोटे से अपने घर में चैनल में ऐसे दोस्तों की बात पर ना तो 30-36 मुल्कों के लोग ऑनलाइन सुना करते थे।
بڑی خاموشی سے بات کرنے کا میرا مزاج ہے. آپ لوگوں کے قدموں کی برکت ہے کہ تھوڑی بہت آپ کے دلوں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اگر آپ سنیں, میری آواز بہت متاثر ہے. بغداد شریف کے بڑے عظیم مہمان میرے گھر پہ تشریف لائے تھے اور الہ آباد میں تھے, سرکار گلزار ملت کی خانقاہ مبارکہ میں گئے تھے, لکھنؤ میں قیام کیا تھا, تو میں ان کے ساتھ 8-9 دن تھا. تو بے پناہ رات دن جاگنے کی مصروفیت میں آواز کچھ متاثر رہی. بہرحال اللہ کا شکر ہے, لیکن میرے جملوں کا جو ماحصل ہے وہ آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سنیں آپ. درود شریف کے حوالے سے پہلے ایک بات سن لیں, پھر درود شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جو لوگ بہت پیچھے بیٹھ رہے ہیں, میں ان سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے بیٹھیں, ساتھ میں بیٹھیں. یہ حضور کی محفل. میں اپنے باپ کے نام پر قسم خدا کی نہیں بلا, میں اپنے باپ, اپنے قبیلے, اپنے خاندان کے نام پر آپ کو نہیں بلاتا ہوں. آپ کے لیے اگر پیروں میں مٹیاں چبھ رہی ہوں تو میں اپنی ٹوپی آپ کے پیروں میں بچھا دوں, آپ اسے قالین سمجھ کے. یہ میرے آقا کی محفل ہے. حضور کی محفل کو سجاؤ, حضور کی محفل کی وجہ سے دل تمہارا سجے گا انشاءاللہ. سمجھے؟ یہ کیا مطلب ہے, کوئی آپ سے کہے تو آپ وہاں سے چل کر کے یہاں پر آؤ گے. سنیں ایک بات, امام راضی فرماتے ہیں ایک ایسا بھی عاشق رسول تھا جو سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھتا تھا. سبحان اللہ. کیا پڑھتا تھا؟ بولے بولے بولے. درود. حضور پر درود شریف پڑھتا تھا. امام راضی فرماتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وضو کر کے حضور پر درود پڑھتا تھا, حضور پر درود شریف پڑھتا تھا. ہلو قاری صاحب, آپ بات کریں کہ میں درود شریف, آپ بیٹھیں گے, دیکھیں میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. ضروری بات ہو تو پھر مجھے چپ کرا دیں, میں چپ ہو جاؤں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر جائیں تو تحفہ لے کر کے جائیں. محبت سے بولے بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ. درود کی برکت بتا رہا ہوں. میں نے گفتگو کی تھی غوث پاک سرکار کی شان میں. ایک میری بہن ہے, دوسرے صوبے کی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بھائی جان میں نے اس کو یوٹیوب میں سنا تو میں روتے روتے سو گئی. میں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کر لی. سبحان اللہ. کیا بعید یار, کیا مشکل ہے. آپ کا دل اگر نرم ہو گیا تو حضور کا کرم ہو سکتا ہے. دوستوں سے تو روز باتیں کرتے ہو, کبھی کبھی حضور سے باتیں کر لیا کرو نا, محبت سے. انشاءاللہ درود آپ کے دل میں محبت پیدا کرے گا. امام راضی فرماتے ایک عاشق رسول ایسا بھی تھا جو سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھتا تھا, سبحان اللہ. اٹھنے کے بعد حضور پر درود پڑھتا تھا, کاروبار کے لیے گھر سے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا تھا, جب اپنے کپڑے کے تھان کو بیچنے کے لیے اوپن کرتا تو درود پڑھتا تھا, جب وہ سفر کرتا درود پڑھتے ہوئے, کھانا کھاتا درود پڑھتے ہوئے, جب لوگ اپنی بیوی سے محبت کی باتیں کرتے اس وقت بھی وہ درود پڑھتا تھا. کوئی تکلیف ہے سبحان اللہ کہنے میں؟ سبحان اللہ. سبحان. میرے کہنے سے کہیں گے تو مجھے چھوڑ دیجئے, میں اپنے گھر چلا جاؤں, میں اپنے گھر والوں سے کہوں سبحان اللہ کہیے. اللہ راضی کہ مجھے پالنے والا. یار جب حضور کے کسی ایسے عاشق کی بات سنیں تو آپ کا دل مچلنا چاہیے. وہ جب بیوی سے بات کرتا تو درود پڑھتا تھا. اللہ اللہ سبحان اللہ. وہ کہتا ہے میں ایک دن سو گیا, خواب میں مدینے والے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ. اور محبت سے سبحان اللہ یاد کریں تاکہ آج سے آپ کے دل میں درود پڑھنے کی محبت پیدا ہو جائے. آج سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے. دیکھیں قاری صاحب, واہ بات خوب. میرے آقا تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بتا دوں, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, پھر سے بولے لبیک یا لبیک یا رسول صلی اللہ اللہ. علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا. قاری صاحب وہ کہتے ہیں حضور نے, ادھر دیکھیں بھائی آپ, میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا, یوں پکڑ کے جملہ ارشاد فرمایا, آپ کی روح ہل جائے گی. حضور نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور یوں پکڑ کے ارشاد فرمایا, میرے عاشق سن, تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. آپ مدینے سے کوئی آتا ہے اس کے پاؤں چوم لیتے ہیں, زمزم کا پانی دیتا ہے تو کھڑے ہو کے پیتے ہو, مدینے پاک کے کھجورے دیتا ہے تو اس کی گٹھلیاں جیب میں رکھ لیتے ہو. ہاں سبحان اللہ, ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب آ کے بیٹھے, کسی نے کہا کہ حضور یہ مدینے سے آ رہے ہیں, تو اعلیٰ سرکار اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے, ان کے پیر کو چوم لیا. تو بولتے حضور کیوں میرا پیر چوم رہے ہیں؟ کل 2 دن مدینے شریف میں تھا. فرماتے میرے امام میاں اس شہر میں 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے, 2 لمحہ بھی بہت ہوتا ہے, تم تو 2 دن رہ کے آئے ہو. وہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے. بہت خوب. سب لوگ بولے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں کانپ گیا, میں ڈر گیا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میرے ہونٹ کپ کپانے لگے, میں سمجھ گیا کہ حضور میرے ہونٹ کا بوسہ لیں گے. قاری صاحب
हुजूर मेरे होठों को चूम लेंगे, मैं गुनहगार, मैं नाकारा, मेरे होठ नापाक गंदे। वो कहते मैं कांपने लगा, मैं कांपने लगा, मैं कांपने लगा। वो कहते हैं कि मुझ पर लर्जा तारी हो गया, मुझ पर लर्जा तारी हो गया कि कहां हुजूर के वो होठ जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां और लबों की नजाकत पे। वो कहते हैं जैसे हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और अपने होठों के करीब लाना चाहा, जैसे लगा कि अब हुजूर के मुबारक होठ मेरे गुनहगार होठ से मिल जाएंगे। मैंने अपने चेहरे को घुमा लिया, जब अपने चेहरे को घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होठ मेरे गाल पे चिपक गए। सुभान अल्लाह। फिर बातें करेंगे आप कि सुभान अल्लाह कहेंगे? वो कहते हैं कि हुजूर के दोनों होठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब मेरे गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई, जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी आंख खुल गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये जो पेड़ पौधे, ये रेगिस्तान, ये पथरीली वादियां, गवाह बनाओ मोहब्बत सुभान अल्लाह कह के। सुभान आला हजरत सरकार जब जबलपुर शरीफ तशरीफ ले गए थे ना, तो एक झील में आप कश्ती पर बैठे हुए थे, सुभान अल्लाह। और वो कश्ती एक पहाड़ के करीब गई तो आला सरकार जोर जोर से दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। तो सरकार बुरहान मिल्लत ने फरमाया कि हुजूर जोर जोर से अचानक क्यों पढ़ने लगे दुरूद शरीफ? तो आप फरमाते इन पत्थरों को गवाह बना रहा हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया, ये दुरूद का मामला है। वो कहते हैं कि मेरा पूरा छप्पर महक रहा था। ये बच्चे, ए बेटा हट जाओ वहां से, बातचीत न करना, ठीक है बेटा? हंसने के बाद तमाचा मारूंगा सबको, ठीक है? बदमाशी मत करना। तुम हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हो, तुमको देख करके लोग कलमा पढ़ना चाहिए तुमको, उनको अपने किरदार को संवारो। ये तो सब जलसे से करके सब लोग थक थका गए हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बनती है कि हुजूर की, बेटा है इनको अलग करो, वहां से अलग करो, अलग करो दो तीन बच्चों को जी। एक तो जगह वैसे भी कम है, भीड़ बहुत बढ़ने की उम्मीद भी है माशाल्लाह, कसीर तादाद में लोग। अभी तो मेरे आका हुजूर वारिस जुबै मौलाए कायनात आने वाले हैं, सुभान अल्लाह। शहजादे सरकार इमाम जाफर सादिक आने वाले हैं। मैं तो वक्त पहले आ गया सिर्फ इसलिए कि आप दो चार लोग बैठे हुए थे, इस कदर हजारों का मजमा सामने आ गया माशाल्लाह। कारी साहब आपकी मेहनत है माशाल्लाह, इन उलमा के करम की। फजर की अजान की आवाज आई, मैंने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के मैं गली से गुजर रहा था तो मोहल्ले के लोगों ने मुझे दौड़ा के पकड़ा, बोले ओ गरीब ठहर ठहर ठहर। मैं रुक गया, मैंने कहा क्या बात है? मैं तुझे शर्म नहीं आती? भूखे इंसान, गरीब इंसान, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरा घर बारिश में टपकता है, तेरे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? इतना कीमती तूने इत्र कहां से लगा लिया? तो वो कहते खुदा की कसम है, जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है, मेरे बदन की नहीं तो हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। बहुत उम्दा। तो तुझे कैसे मिल गई? बोले हुजूर पर दुरूद पढ़, शाबान का महीना दुरूद का महीना है, तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह दुरूद शरीफ इंशाल्लाह। कल से एक फिगर बनाएं, फिगर जब तक रमजान का चांद न निकले एक टारगेट बनाएं आप। गौस पाक ने कहा ये दुरूद का महीना है, सुभान अल्लाह सुभान। 100, 111, 211, 311, 511 मतलब दुरूद पढ़ेंगे हुजूर पर जब तक रमजान का चांद निकलना है। क्यों? गौस पाक ने फरमाया ये दुरूद का महीना है। सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। घर पे एक मेरी बहन आती हैं, कारी साहब बैठे हुए जिम्मेदार लोग बैठे, आशिक लोग बैठे हुए। मैं ये बातें बताता नहीं हूँ, लेकिन बताता हूँ कि ताकि मेरी बहनों को भी हुजूर से जो कल्बी लगाव है ना वो और ज्यादा गहरा हो जाए, और आपके दिल में। वो इतनी मुकद्दस खातून है, वो मेरी माँ जैसी हैं, ज्यादा उम्र शरीफ उनकी नहीं है। कारी साहब ताज्जुब करेंगे आप, बात कर लें, ताज्जुब करेंगे आप। वो इतनी हुजूर से मोहब्बत करती है ना, इतनी करती है, वो कहती है कि भाई मैं 8-9 दिन नहीं होने पाते कि हुजूर को ख्वाब में देख लेती हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर को याद किया करो, हुजूर पर दुरूद पढ़ा करो। अल्लाह हम सबको हुजूर से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। बेशक। जितने लोग कमेटी के बाएं तरफ खड़े हुए हैं या दाएं तरफ बैठे हुए हैं, मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग वहां से उठ करके करीब आ जाएं। आपको अल्लाह उसके रसूल की अजमत का वास्ता, फिक्र रजा की तहारत बसीरत बसारत का वास्ता, आप लोग वहां से उठ करके यहाँ पर आ जाए। तशरीफ लाए आप लोग, तशरीफ लाए। ये कोई खेलकूद की महफिल नहीं है, हजारों हजार का मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी मोहब्बत की बड़ी आंखों से। अभी जब हुजूर वारिस सरकार जुब्बे मौलाए कायनात आएंगे, औलाद सरकार इमाम हुसैन आएंगे, सुभान अल्लाह के, सुभान अल्लाह।
रसूल शरीफ का दूल्हा आएगा, सरकार आला हजरत के मसलक का सबसे मोतबर नाशिर आएगा, सरकार ताज शरिया की अजमतों का बाजू आएगा। आप वहां से उठ के यहां आना भी चाहेंगे तो आ नहीं सकते हैं, समझे मेरे भाई। अभी अल्लाह तौफीक दे रहा है, आप लोग उठ करके यहां पर आ जाइए। मैं गुजारिश करूंगा, वरना इतने लोग काफी हैं जलसे को कॉन्फ्रेंस में तब्दील करने के लिए। हुजूर के जिक्र के लिए करोड़ों लोगों का होना जरूरी नहीं है, हुजूर के जिक्र के लिए रसूल का होना जरूरी है। ये बच्चे, ये मेरे भाई, ये बुजुर्ग लोग बैठे हुए, अल्लाह सबके पांव मेरे सर पे रखे। और मैं ये दुआ करूंगा जितने लोग आ गए, अल्लाह सबको जिंदगी में एक मरतबे गौस पाक का दरबार दिखा दे। आमीन, आमीन। मेरी झोली में इससे अच्छी कोई दुआ नहीं है भाई। मेरा दिल बड़ा लगा रहता है गौस पाक की बात। मैं कई साल के बाद अब की बगदाद शरीफ लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और भी ऐसा हो जो न जाने पाए। मैं चाहता हूं कि सब जाएं बगदाद शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। कैद सरकार की सीरत नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्फाज से मिदहत नहीं की जा सकती। ना 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 ना, थोड़ी सी आवाज बढ़ा के छोड़ दीजिए, रिपीट मत कीजिए। आवाज बहुत अच्छा माइक, मेरी अपनी आवाज मुतासिर है, रिपीट नहीं, एक सिंगल आवाज रखिए। बहुत अच्छा माइक है, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इको न डालिएगा मेरे माइक में, बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह। मेरी आवाज खराब, सिर्फ अल्फाज से मिदहत नहीं की जा सकती। वो दर पे बुला ले तो करम है, वरना ना बुलाएं तो शिकायत नहीं की जा सकती। वाह वाह, ना बुलाएं तो शिकायत नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मद वल करम व अला आलिहि व अदलिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। अगर कहें तो नाशरीफ को शेर पढ़ दें अरे साहब। बताओ बताओ, बहुत खूब। हाँ, सब शेर आप लोगों को याद है, फिर भी एक दो शेर पढ़ता हूँ, पुराने शेर पढ़ता हूँ। हुजूर इजाजत दीजिए। उलमा किराम जरा सब आए, सलीम रज़ा साहब आ गए माशाल्लाह। सब उलमा किराम को आगे बिठा दें, कोई दिक्कत ना हो। इन दोनों से बड़ी मुलाकातें होती हैं, नात के हवाले से, तो निज़ामत के हवाले से, और इन उलमा किराम के नालैन की बरकतों से अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा ले, आमीन कह दे माशाल्लाह। मैं मिसरा पढ़ूँ इंशाल्लाह। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए। सुभान अल्लाह। पूछ लें सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आपस में बात कर लें, डिस्कस कर। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए। बेशक, बहुत उम्दा, वाह। फिर से कोशिश करता हूं मैं, शायद फिर से आप सुभान अल्लाह कहें। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, खता की डायरी। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो। अच्छा, इतनी बड़ी मजलिस में कोई नारा वरा लगा सकता है? अरे माशाल्लाह, खड़े हो जाए भाई, भाई भाई खड़े हो जाए, खड़े हो जाए माशाल्लाह, सलामत अकबर। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए भाई। या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। सलीम भैया बगदाद शरीफ गए? हाँ मेरे भाई, दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला इस महफिल में नेक लोग जो बैठे हुए हैं, उनके सबके में हमारे इन भाइयों को भी गौस पाक का दरबार दिखा दे। आमीन आमीन। अल्लाह गौस पाक के बाबुल शेख की ज़ियारत नसीब फरमाए, बाबुल मुराद की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह बाबुल इज़्ज़त की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह जामिउल जिलानी की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह बरकत जिलानी की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह गौस पाक के शहर में शेख अबू खुमरा हिंदी जहाँ लेटे हुए हैं, इमाम गजाली जहाँ लेटे हुए हैं, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा जहाँ लेटे हुए हैं, शेख अबू बकर शिबली जहाँ लेटे हुए हैं, सरकार बिशर हाफिज जहाँ लेटे हुए हैं, सरकार अबुल हसन नूरी जहाँ लेटे हुए हैं, सरकार शेख कबीर अहमद रफाई के वालिद शेख सुल्तान अली लेटे हुए हैं। गौस पाक के यहाँ आज़म अबू हनीफा की मज़ार की, शेख मारूफ करखी के मज़ार की, शेख सरी सख्ती की मज़ार की, शेख जुनैद बगदादी की मज़ार की, ख्वाजा हबीब अजमी की मज़ार की, सरकार जुन्नून मिस्री की मज़ार की, सरकार बहलोदाना की मज़ार की, शेख इब्राहिम खवास के मज़ार की, सरकार इमाम मूसा काजिम की मज़ार की, इमाम मोहम्मद जवाद तकी की मज़ार की, इमाम यूसुफ की मज़ार शरीफ की, इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन की मज़ार शरीफ की, शेख ख्वाजा हसन बसरी की मज़ार शरीफ की, सहाबी रसूल हज़रत
انس بن مالک کی مزار کی, سرکار طلحہ کی مزار کی, سرکار زبیر بن عوام کی مزار شریف کی, آمین. نجف اشرف کے سلطان ولیوں کے امام مولا کائنات کی مزار شریف کی, ارض کربلا کی, مزار مولا عباس کی, مزار سرکار امام حسین کی, اصحاب امام حسین کی مزارات کی زیارت کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. یہ مبارک نام میری زبان پر آئی ہے, سب کے سب بغداد یا بغداد گرد و نواح میں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تنہا پوری دنیا کو ایک بزرگ سنبھال سکتا ہے, بغداد میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے. آپ جاؤ گے نا, جب غوث پاک کا دربار دیکھو گے تو معلوم کیا کہو گے, اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا, زندگی میں آستان شاہ جیلانی ملا. سبحان اللہ. اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا, زندگی میں آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں, ہے مگر قسمت کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. سبحان اللہ. زور سے بولے, زور سے بولے, زور سے بولے آپ. ہے مگر قسمت کی مجھ کو حکم سلطانی ملا, اور میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں. ہے مگر قسمت کی مجھ کو حکم. سبحان اللہ. یوں لگا دیدار پا کر آستان اس کا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا, اور اس کی مٹی, اب اس شعر میں آپ شامل ہو جائیں, اس کی مٹی پھر کبھی برباد ہو سکتی نہیں, جس کو طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو کلام میں نے پڑھا نا, حضور غوث پاک کی مزار شریف کے قریب اسے بیٹھ کے پڑھتا تھا. آج میں نے آپ کو گواہ بنا کے پڑھا ہے. آپ جائیں بغداد, جائیں گے انشاءاللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جائیں گے انشاءاللہ. آپ جب مکہ شریف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. کیا کہتے ہیں؟ جو جانا چاہتا ہوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک اللہم لبیک. اللہم لبیک اللہم پھر سے بولے لبیک اللہم لبیک. اور جب مدینہ شریف جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. پھر سے بولے, اور اسی میں لبیک لبیک. دل سے بولے حضور کی بات ہے. لبیک یا رسول اللہ. آج حضور تمہیں بلا رہے ہیں مدینے میں, کیسے کیسے؟ لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. کیا مطلب؟ مکہ شریف جائیں گے تو کہیں گے لبیک اللہم لبیک, مدینہ پاک جائیں گے تو کہیں گے لبیک یا رسول اللہ, اور جب بغداد شریف جائیں گے تو کہیں گے لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا رسول. انشاءاللہ بولو. اللہ میرے ان تمام تر بھائیوں کو, بچوں کو, جوانوں کو, بزرگوں کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے, حضور غوث پاک کی بارگاہ دکھا دے. جائیں گے انشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. آج حضور سرکار گلزار ملت کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر کے یہ عریضہ پیش کریں گے. حضور گھر میں کوئی بیمار ہے وہ ٹھیک ہو چاہے نہ ہو, بچے بھوکے ہیں کھانا ملے کہ نہ ملے, بچے پیاسے ہیں پانی ملے کہ نہ ملے, کاروبار اجڑ گیا بنے کہ نہ بنے, لیکن ایک دعا کر کے جائیے, بغداد دکھا دیجئے. کہیں گے انشاءاللہ. بڑی خاموشی سے بول رہے ہیں, زور سے بولے. اب میں جو شعر پڑھ رہا ہوں, اس شعر کو میں نے تقریباً 2014 میں حضور غوث پاک جس مسجد میں تقریر فرماتے تھے, میں نے اس مسجد میں ایک مجلس میں پڑھا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس 2 ہی آدمی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اور بقیہ لوگ کیا سنیں آپ. ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے, ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے. ارے آنے دیجیے, آنے دیجیے, آنے دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت ماشاءاللہ استقبال کر لیں. حضرت علامہ مولانا مفتی بدر الدین صاحب قبلہ خلیفہ حضور محدث کبیر, حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب قبلہ خلیفہ حضور محدث کبیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, خلیفہ حضور گلزار ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں یہی کہہ دیا جائے, خلفائے حضور سرکار گلزار ملت کی آمد ہوئی ماشاءاللہ. انتخاب مشائخ اہل سنت کیا. ادھر ادھر بیٹھتا تھا. بس میرا کام ختم ہو گیا, میں اب میرے لیے صاحبان کا انتظام کر دیا گیا ہے. بزرگوں کے نقوش قدم کے نیچے بیٹھنے کی توفیق مجھے میسر ہے. وہ شعر میں پڑھ رہا تھا, آپ سن رہے تھے, میں چاہتا ہوں اب آپ شعر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہیں کہ کہیں چلے گئے آپ لوگ؟ بولے بولے بولے.
ہیں माशाल्लाह. फिर से पढ़ता हूं मिसरा, फिर से सुभान अल्लाह कहेंगे. हाँ, इतनी मोटी रस्सी बांध दी गई कि आप लोगों की आवाज भी अंदर नहीं आने पा रही है. मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए. सबकी आवाज का मैं इंतजार कर रहा हूं. आप जब पूरे साल इस जलसे का इंतजार करते हैं तो मैं आपकी आवाज का इंतजार ना करूं? इंतजार आप ही की तो सुन्नत है. तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए. और नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए. और हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले. हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं. हुजूर गौस पाक की बारगाह बमुश्किल वहां से 15 से या 20 फीट के फासले पर जहां महफिल मुबारक जमी हुई है, जमीन है बगदाद की, मस्जिद है जामुल जिलानी के नाम से, मज़ार मुबारक शहनशाह बगदाद की. ये शेर मैंने पढ़ा 2014 में. इन उलमा के कदम की बरकतों से आज आपके हवाले कर रहा हूं. मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए. नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए. हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए. बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, जिसे है मसलक अहमद रजा संभाले. नारे है मसलक, नारे रिसाला, फैजाने इमाम आजम, मसलके आला हजरत, जीते रहिए फैजाने माशाअल्लाह. हुजूर ताजो शरिया, माशाअल्लाह. फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर. जिंदाबाद. सुभान अल्लाह. सना खान रसूल जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम सलीम रजा मकबूरी साहब क़िबला से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा. मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है, अभी भी याद है काबे से वापसी का सफर, मैं हम्द लिखने लगा था कि नात हो गई है. आका करीम की बारगाह में हदीए नात पेश करने के लिए आपके सामने खुद आपकी आवाज को हवाले कर रहा हूं, जो मेजबान भी हैं और मेहमान भी हैं. यही पाकीज़ा इनाम का स्टिकर आपकी समातों की पेशानी पे चस्पा है. गुजारिश करता हूं औलाद सरकार इमाम जाफर सादिक हुजूर सैयद अब्दुल वसीम या शाह साहब क़िबला से पहले इस खूबसूरत आवाज के ताक़ुब में आप लग जाएं. भैया प्लीज. नहीं हजरत वो आना